इस तरह के चीज ठीक नहीं है कोर्ट में। No, no, there नहीं is नहीं nothing which नहीं, हम बता रहे हैं ना, आप अपने मन के हिसाब से जो है क्लास पूरी ऑर्डर शीट पूरी देखिए, आप अपने मन के हिसाब से जो क्लास एग्जामिनेशन का 4 पेज ले आए, न पहले का एग्जामिनेशन चीफ लाए, न बाद का लाए, इस तरह का प्रैक्टिस ठीक थोड़े। sir, I'll file it, but नहीं ना, आपने फाइल ही नहीं किया, ये तो कोर्ट को आप एक हिसाब से चीटिंग करके वो करना चाहिए। नहीं सर, this is आप ये बताइए कि आपने एग्जामिनेशन इन चीफ पैरा नंबर 133 तक लाया नहीं क्लास से, बाद का क्लास से एग्जामिनेशन लाया नहीं, मेरा बीच हमारी बात सुन लीजिए, अब बीच का 2 पैरा पढ़ करके आप चाहते हैं कोर्ट उस पर आपका वो कन्विंस हो जाए। sir, we will file it. तो फाइल करिए ना, We will file. फाइल करिए उसको। But then your lordship, there are other grounds also. नहीं अदर ग्राउंड ने आप गवाही पढ़ रहे हैं, गवाही का ना आगे का पोर्शन लाए ना बाद का पोर्शन लाए, बीच का ले आए और कर रहे हैं आप चाह रहे हैं। There are a number of witnesses are there, my lord. जो My argument is totally on relying upon the government circulars and documents. प्रश्न उस पे नहीं है, आप जब क्लास एग्जामिनेशन I put down to your lord. But so far as this has never been our practice, my lord. We have never followed this. क्या चीज? If there is a mistake, my lord, we'll get it correct. हाँ तो उसको वो कह दीजिए ना, आधी गवाही आप लेकर आ रहे हैं, चाह रहे हैं। Can your lordship grant me next week, my lord? हाँ ठीक है, डेट दे देंगे। Any date, my lord, be granted, because my lord, we have argued it on a number of occasions. That is the reason why. My lord, it is our fault, and we will get it correct. Yes, if your lordship insists, my lord, that the complete thing has to be filed. Complete होना चाहिए, किसी को भी क्या मतलब एग्जामिनेशन चीफ में उसमें क्या बोला बाद में। Your lordship would appreciate, my lord, that I have even placed all the circulars and guidelines of this part. ये नहीं, ये बताइए कि आप वो बाद में आपने पूरा क्लास एग्जामिनेशन पेश नहीं किया, हो सकता है बाद में उसको प्रोसिक्यूशन ने उसको जो हॉस्टाइल डिक्लेयर किया हो, कोर्ट ने री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हो, जब तक पूरी गवाही नहीं रहेगी तो मुझसे क्या निष्कर्ष निकालेंगे? Grant us a date, we'll file it. ये चीज ठीक भी नहीं है। 54 ठीक है, नेक्स्ट 6 1 वीक टाइम, ठीक है, गवाही तो पूरी होनी चाहिए ना। मैं देखिए, my lord, in this case, my lord, I am inside the jail, my lord, since 13/2/2024, 13 फरवरी 2024 से। Your lordships would see that the co-accused have already been granted bail in this matter, my lord. The main accused, my lord, this is a case of Pradhan Mantri Awas Yojana in the district Baitul, my lord. As your lordships are aware, my lord, there are 3 tier panchayats: ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। सर इसमें जो हमारे खिलाफ आरोप है वो ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो बेनिफिशियरीज होते हैं वो गांव वाले होते हैं। उनमें से लगभग 51 ग्राम निवासियों को इस बेनिफिट का फायदा हमको नहीं मिला, किसी और के खाते में अकाउंट में पैसा चला गया। Now your lordship would see, my lord, that there are 3 stages: the gram panchayat, janpad panchayat, zila panchayat. The applicant is placed in the janpad panchayat. He is neither in the gram panchayat nor in the zila panchayat. The hierarchy says, my lord, that under the scheme, a person who is a beneficiary can apply for this yojana after being identified at the gram sabha level. The person who identifies at the gram sabha are 3 individuals: sarpanch, panchayat sachiv, and gram rozgar sahayak and panchayat samanvayak, my lord. Panchayat samanvayak is the person who is required to ensure that under the 13 bindu, the 13-point checklist, whether the documents are proper, the geotagging has been done, जिस जमीन पे इसमें योजना का लाभ मिलना है वो वाकई में वो जमीन है कि नहीं, जो बेनिफिशियरी है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं कि नहीं. After the verification is done at the Gram Sabha level, the documents are uploaded by the Gram Rozgar Sahayak. The Gram Rozgar Sahayak uploads these documents and it goes to the next stage, that is the Janpad Panchayat. In the Janpad Panchayat, there is a computer operator who uploads the same information which has been verified at the Gram Sabha level. He has also got nothing to do with mechanically testing or scrutinizing the document कि वो सही है कि नहीं है. जब वो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं, that document under the by the applicant and the tilak and the computer operator are then sent to another officer, which is the CEO of Janpad Panchayat. It is the CEO of Janpad Panchayat which issues a certificate that even if there is a red order sheet generated, red order sheet तब generate होती है जब कोई mismatch होता है. अगर mismatch था तो वो red order sheet को clear करने का काम सिर्फ CEO जनपद पंचायत का है. CEO जनपद पंचायत उसको सर्टिफाई करती हैं और भेजती हैं जिला पंचायत, और जिला पंचायत से अप्रूवल आता है कि हाँ भाई इसमें एक मिसमैच है, मगर वो टेक्निकल मिसमैच है, इसमें हम अलाउ करते हैं कि इस बेनिफिशियरी को जो किस्त है या जो भी अमाउंट है उसका पेमेंट किया जा सके. इन दिस केस द CEO ऑफ जनपद पंचायत हैज बीन एक्सटेंडेड बेल.
the the Panchayat Samanvyak who has scrutinized, who has obtained these documents, who has verified the documents have been granted bail. The Awas Pramukh at the Janpat level has been granted bail, and the other accused have been granted bail. Now, my lord, this is the background of this case. Now, my lord, I'm coming to the issue of parity, and I will take your lordships to annexure A3 at page 60 for a minute, my lord. 54. Sir, A3 at page 59 onwards, sir. I would first refer to, my lord, page number 64, my lord, the bail which has been extended by the Honorable Supreme Court. Yes. And the ground on which it has been sent. Your lordships would see, my lord, Kanchan Dongre is the CEO of Janpat Panchayat, who was granted anticipatory bail by the Honorable Supreme Court and thereafter confirmed, my lord. By the impugned judgment order dated 10th May 2024, the High Court has declined appellant's prayer. The appellant figure. पढ़ लिया, कोई point तो बताइए आप. Sir, my respectful submission is that, my lord, I am heavily relying upon the judgment, the order passed in the case of Rajendra Prasad Gadaria, my lord. Rajendra Prasad Gadaria is at page number 74, my lord. 74. जी sir. 74. Yes. इसमें, my lord, पैरा नंबर 5 देख लें. It is not disputed that the co-accused has been granted bail. भी देख लिया, 13 विटनेस और 72 विटनेस. हम आगे बताइए, पॉइंट बताते जाइए, हम देख सर इस चीज को फॉलो किया है. Recently the coordinate bench of this court has granted bail to Tilak Malviya, who is equally placed. पेज नंबर 77. ये हमारे साथी प्लेस हैं, हमारे साथी कंप्यूटर ऑपरेटर. ठीक है. Now, my lord, they have considered both the grounds of parity as well as innocence, my lord. Now, my lord, I will take your lordships, my lord, I will very briefly, my lord, point out the examination of some of the witnesses which I have read, my lord. This is annexure A4. My lord, after the registration of the FIR, the police authorities asked for detailed information as to the role of the applicant, my lord. That was asked, my lord, which is annexure A5 from page number 115 to 118, my lords. 128, 115 to 128. Annexure A5 में कहीं भी 115. जी सर. सर ये जानकारी पुलिस अथॉरिटीज ने मांगी थी. इसमें स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो इसमें पूरी प्रक्रिया निर्धारित की है और उसमें एप्लीकेंट का कहीं पे भी कोई रोल उल्लेखित नहीं किया है. ऑन द कॉन्ट्ररी, ये बताया गया है कि एप्लीकेंट का काम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का था और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के जिम्मे ये एक टेम्पररी पोस्ट है, ना कि परमानेंट पोस्ट है. ही इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय. तो इनको कोई ऐसा स्क्रूटिनी या फिर डिसबर्समेंट का कार्य नहीं दिया जा सकता है. इनका कार्य था कि जितनी भी एजेंसीज हैं उनके साथ समन्वय करके उनको समय समय पे उनका कार्य उल्लेखित करना. इस संदर्भ में 53 लेटर्स को दर्शाया गया है जो कि हमारे द्वारा विभिन्न अथॉरिटीज को समय समय पर जारी किए गए और इसमें यही बताया गया है कि हमने अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया है. और इस बात की पुष्टि जो इंक्वायरी ऑफिसर के जो द इंक्वायरी कमेटी के जो मेंबर्स हैं, नरेंद्र गौतम, उमेश महाले और इंदिरा महतो, इनका एग्जामिनेशन भी मैंने लगाया एनेक्चर A4 में. मरोड, आई विल जस्ट रेफर टू मरोड एनेक्चर. योर लॉर्डशिप में काइंडली कम टू पेज नंबर 108 फॉर अ मिनट. मैं सभी पैराग्राफ्स नहीं पढ़ रहा हूँ सर. 105 देखने सर पहले एक मेरा आग्रह रहेगा. 103, 105. I can give the relevant page numbers also. हाँ बताइए. 103. Lord, I'll come to 102 for a minute. Lord, it starts from here. यह कहना सही है कि हितग्राहियों की सूची तैयार करना, जियो टैग करना एवं हितग्राहियों का आवास पोर्टल पर पंजीयन करना महेश शुक्ला जो कि एप्लीकेंट है, बीसी आवास ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आवास की योजना अथवा के निर्देश अनुसार जिम्मेदारी नहीं है. यह कहना भी सही है कि ब्लॉक समन्वयक का कार्य ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारी प्रतिनिधि को पत्र लिखकर एवं जनपद स्तर के जिम्मेदार अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराना होता है. यह कहना सही है कि मेरे एवं मेरे दल द्वारा की गई जिला पंचायत स्तरीय जांच के प्रतिवेदन के साथ 1 से 274 तक दस्तावेज संलग्न किए गए हैं. उनमें से 1 से 53 पत्र भी शामिल हैं जिनके माध्यम से महेश शुक्ला द्वारा ब्लॉक समन्वयक की हैसियत से ग्राम पंचायत स्तर पर एवं जनपद स्तर पर पत्र जारी किए कराए गए.
स्वतः कथन में कहा कि ब्लॉक जो समन्वयक मेन का पद पॉइंट वो बताइए, ऐसे तो 200 पेज की गवाही होगी तो शाम तक पढ़ते रह जाएंगे। नो माय लॉर्ड, जो मेन पॉइंट वो बताइए सर जहाँ पर क्या है। मैं वही बताने की प्रयास कर रहा हूँ सर। इसमें मेरा ना तो लॉगिन आईडी पासवर्ड मेरे पास रहता है, ना मेरा काम स्क्रूटिनी का है, ना मेरा काम डिसबर्समेंट का है। अब योर लॉर्डशिप्स में काइंडली सी माय लॉर्ड पैरा नंबर 45 फॉर अ मिनट। 45 पैरा नंबर योर लॉर्डशिप वुड सी माय लॉर्ड 105 माय लॉर्ड, पैरा नंबर 24। यह कहना सही है कि ब्लॉक समन्वयक की कोई लॉगिन आईडी नहीं होती है। स्वतः कहा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की होती है, जिनको बिल ग्रांट की जा चुकी। यह कहना सही है कि जनपद पंचायत के कार्य में कार्य विभाजन आदेश होता है, तदनुसार अधिकारी कर्मचारियों को अपना अपना कार्य अतिरिक्त पद जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी की होती है। पैरा 25 में नो रोल इन रेड ऑर्डर शीट। इसमें एक आरोप यह है कि रेड ऑर्डर शीट जनरेट हुआ था, उसके बाद भी पेमेंट हो गया। तो ऊपर ही हमने बता दिया कि हमारा कोई रोल नहीं है। यह कहना सही है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों में ऐसा कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। हितग्राहियों की रेड ऑर्डर शीट क्लियर करने के लिए ब्लॉक समन्वयक द्वारा जनपद पंचायत सीओ को पेश किया हो। स्वतः कहा कि पावर झंडा से संबंधित प्रक्रिया में हमारी समिति में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं पाया। Now, my lord, may kindly come to 108, last paragraph 45. 108:45 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति जिला पंचायत से होती है। इसके बाद ही 4 किश्तों में राशि का भुगतान होता है। हमारे जांच दल में तीनों सदस्यों ने मिलकर सामूहिक रूप से जांच की थी। रेड ऑर्डर शीट जिला पंचायत सीओ जनपद पंचायत के पत्र एवं प्रमाण पत्र के आधार पर ही क्लियर की जा सकती है। ग्राम पंचायत पावर झंडा के समस्त प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों का पंजीयन कब हुआ था मैं नहीं बता सकता। स्वतः कहा कि हमारी जांच का विषय नहीं था। Now, your lordships में काइंडली सी my lord 109 my lord। इसमें ये बता रहे हैं कि ब्लॉक समन्वयक और खंड विकास अधिकारी का पद अलग अलग होता है। पैरा नंबर 4 में हमारा कार्य बताया गया कि हमें सिर्फ उनको रिमाइंड करने का काम था, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं था। पैरा नंबर 5 में कहा है अपने पदीय कर्तव्य निर्वाह में ग्राम पंचायत। ये सही है। इसके आगे किसकी गवाही कहाँ है? 109 सर ये नरेंद्र कुमार गौतम है, जो मैंने रिपोर्ट अभी दर्शाई है A5 में। ये जांच दल का सदस्य। ये हम नहीं कर रहे हैं। ये गवाही तो इनकम्प्लीट है। पूरी गवाही कहाँ है? मतलब दिस इज द रेलेवेंट पोर्शन ऑफ। नहीं, आपके हिसाब से रिलेवेंट हो सकता है, आपके हिसाब से थोड़े चले। No, but then my lord में काइंडली योर लॉर्डशिप में काइंडली नहीं, इस गवाही से तो कोई वो नहीं। आप पूरी एक तो ये इसमें नहीं है। दूसरी बात और हम आपको बताएं जी। पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 जी ठीक। ये पैरा नंबर 34 से स्टार्ट है। पैरा नंबर 1 से लेकर 33 तक कहाँ है? चीफ है नहीं है। नहीं, 33 तक कहाँ है? पेज नंबर my lords पेज नंबर 80 देखिए ना। 80 80। my lord I'll try to pull out my lord then in that case इस तरह की चीज ठीक नहीं है कोर्ट में। no there's nothing which हम बता रहे हैं ना। आप अपने मन के हिसाब से जो है क्लास कि पूरी ऑर्डर शीट पूरी देखिए। आप अपने मन के हिसाब से जो क्लास एग्जामिनेशन का 4 पेज ले आए न, पहले का एग्जामिनेशन चीफ लाए ना, बाद का लाए। इस तरह का प्रैक्टिस ठीक थोड़े। सर I'll file it but नहीं, आपने फाइल ही नहीं किया। ये तो कोर्ट को आप एक हिसाब से चीटिंग करके वो करना चाहिए। नहीं सर दिस आप ये बताइए कि आपने एग्जामिनेशन इन चीफ पैरा नंबर 133 तक लाया नहीं क्लास से, बाद का क्लास से एग्जामिनेशन लाया नहीं। मेरा बीच हमारी बात सुन लीजिए। अब बीच का 2 पैरा पढ़ करके आप चाहते हैं कोर्ट उस पर आपका वो कन्विंस हो जाए। सर we will file it। तो फाइल करिए ना, we will file it फाइल करिए उसको। but then your lordships there are other grounds also। नहीं, अदर ग्राउंड ने आप गवाही पढ़ रहे हैं। गवाही का ना आगे का पोर्शन लाए ना बाद का पोर्शन लाए, बीच का ले आए और कर आप there are as a number of witnesses are there my जो lord। my argument is totally on relying upon the government circulars and documents। प्रश्न उस पे नहीं है। आप जब क्लास एग्जामिनेशन I put down to your lord but so far as this has never been our practice my lord, we have never followed this। क्या चीज? if there is a mistake my lord we'll get it correct। तो उसको वो कह दीजिए ना। आधी गवाही आप लेकर आ रहे हैं, चाह रहे हैं। Can your lordship grant me next week my lord? हाँ ठीक है, डेट दे देंगे। Any date my lord be granted because my lord we have argued it on a number of occasions। that is the reason why my lord it is our fault and we will get it correct। yes, if your lordship insists my lord that the complete thing has to be filed complete ही होना चाहिए। किसी को भी क्या मतलब एग्जामिनेशन चीफ में उसमें क्या बोला बाद में। your lordship would appreciate my lord that I have even placed all the circulars and guidelines of this part। ये नहीं, ये बताइए कि आप वो बाद में आपने पूरा क्लास एग्जामिनेशन पेश नहीं किया।
हो सकता है बाद में उसको प्रोसिक्यूशन ने उसको जो हॉस्टाइल डिक्लेयर किया हो, कोर्ट ने री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हो, जब तक पूरी गवाही नहीं रहेगी तो मुझसे क्या Your निष्कर्ष lordship may निकालेंगे? grant us a date, we'll file it. ये चीज ठीक भी नहीं है। 54 ठीक है, नेक्स्ट 6 1 वीक टाइम। ठीक है, Great. गवाही तो पूरी होनी चाहिए ना। मैं देख